हम क्या गुण तेरे विथरह स्वामी। तू अपर अपारो राम राजे। हर नाम सालाह दिन रात। एहा आस आधारो। हम मूरख किशु न जानहा। किव पावह पारो। जन नानक हर का दास है। हर दास पनहारो। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान। नाम स्वरूप शब्द स्वरूप तख्त चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सरबत संगत अज बड़े प्रेम दे नाल महापुरख सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी उन्हां दी सालाना याद दे विच जुड़ के बैठे ने। सतगुरु जी कृपा करन। आओ कुछ समा हाजरी भरन दा यतन करिए। सरबत संगत फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारे महापुरख संत बाबा अमीर सिंह जी जिन्हां ने अपने वड्डे महापुरुषों के जीवन बारे उन्हां दे बहुमुल्ले विचारां द्वारा सांझ पाई है। महापुरखों ने मन की गल कीती है। पंच दोख और अहंग रोग बड़ियां बरीक गल्लां कीतियां हैं। सतगुरु जी का बाणी दे विच बचन आउंदा मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल साथ मन ही मंझ समाए। मन जो इच्छा सो लहै सच्चे शब्द सुभाए। मन दे नाल ही लड़ना है। मन नाल ही सलाह करदी है। मन जो चाहे लै सकदा पर जे सच्चे शब्द ना प्रेम पा लवे। सतगुरु जी एक जगह जिक्र करते मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। पूरी कृपा हो जे। मन नूं वस करन दे विच दो साधन मन्ने ने। एक सम मन्निया है तो एक मन्निया दम। सम कहिंदे मन की वासना रोकण नूं। ਜਿਹੜੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ख्याल ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ बुरे विचार आउंदे ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਨ ਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। अपना मूल पछाड़
ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਅਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨ ਦ੍ਰੋਹ ਚਿੱਤ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਰਬ ਉਪਕਾਰ, ਸਮ ਦਮ ਆਦ ਅਕਾਮ ਮਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਤ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਦ੍ਰੋਹ ਚਿੱਤ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਰੋਹ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਦਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਬ ਉਪਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਮ ਦਮ ਆਦ ਅਕਾਮ ਮਤ, ਉਹਨੇ ਸਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਕਾਮ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ। ਕਾਮ ਕਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਜੇਤੀ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇੱਛਾ ਅਕਾਮ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਦਮ। ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੋਕਣੀ, ਤੇ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜ ਲਾ, ਜਪ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਤਪ ਕਰ, ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਆ, ਕਠਿਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਪਣਾ? ਉਹ ਆ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ।
विचे गल्लां करी जाणियां, विचे को खाई पी जाना, विचे को वेखी जाना, सुनी जाना, वो तो सारे ही जप लैंदे। पर जिहड़ी बिरती टिका के नाम जपना वा वो औखा है। दूजा नहीं कोई औखा, राम राम करता सब जग फिर। तां साधना करनी सब तो औखी है, पर बिना साधना तो किसी नूं कुछ नहीं मिलिया ते ना ही किसी नूं कुछ दिता जाता है। बड़े बड़े महात्मा इस संसार दे विच होए ने, जिन्हां दे जीवन प्रेरणा स्रोत ने ते बंदगी करन दा चाह पैदा करते हैं। जे मैं इस पासे जावा तो एक महात्मा सन, 47 तो पहलां दी गल है, अमृतसर साहब जी दियां परिक्रमां दे विच खलोते हुंदे सन। उत्थे नितनेम करते पे सी बैठे। मन बड़ा बेईमान है, ये खलोंदा नहीं है, इस करके मन नूं वकारी कहा जाता। वकारी, वकारी मैंने बदल जाण वाला। तुसीं ते वकारी समझदे ना जिहड़ा माड़ा काम करे, वकारी मैंने बदल जाण वाला। जिवें दुध बदल के दही बन गया, दुध का वकार की आ दही। मन दे विच काम का ख्याल आया तो काम ही बन गया, वकारी हो गया। मन च क्रोध का ख्याल आ गया तो क्रोधी वकारी हो गया। मैंने बदलना, वकार कहिंदे बदल नूं, बदल जाना, अपनी हालत च ना रहना। मन दे विच ख्याल आया कि मना बाजार देखिए, सारी दिहाड़ी पाठ करते मर गए हैं, बाजार वेख के आइए, रौनक मेला देखिए। तां अंदरों अपने आप नूं समझाउण दा यतन कीता। मन तो वखरे हो के आवाज़ आई कि भाई बाजार वेख के की करना वा, रौनक मेला देख के की करना वा, छड्ड खैड़ा। पर मन दे सहत हो के कहंदा नहीं, वेख वेख आइए, सवेर दे पाठ करदे की फर्क पैंदा है। मन एक ही, आत्मा भी एक ही आ। जदों नाल जुड़ गया फिर ਉਹਦੀ बोली बोलदा, जदों माड़ा जिहा वखरा होवे नहीं होर नितनेम कर देंगे। पर मन बड़ा बली आ, बदो बदी खिंच के लै जाता है। संतां बड़ा समझाया अपने मन नूं, जिवें महापुरख लिखते ना, कबहू मन ना थिरता गही, समझायो सह पोत, जैसे मिरकट वृक्ष पर कबू न ठंडो होत। मन नूं मैं बथेरा समझाया, ये ना टिकिया। जिवें बांदर दरख्त ते ना टिकिया, इदां मन ना टिकिया। जिवें महाराज कहिंदे, चल दल पत्तर पताक पट, दामन कच्छप माथ, भूत दीप दीपक सिखा, यह बिद बिरत अनाथ। चल दल कहिंदे पिपल नूं, जिवें पिपल दा सब तो उतला पत्ता हिलदा ही रहिंदा है। पताक पट, पताक कहिंदे झंडे दे फरले नूं, वे झंडा उत्तों उहदा फरला अखीरला कोना बरीक हिलदा ही रहिंदा है। दामन कहिंदे बिजली नूं, एक जगह नहीं टिकदी। कच्छप माथ, कच्छू दा सिर नहीं एक जगह टिकदा, हिलदा ही रहिंदा है। भूत दीप, भूतां दी अग नहीं एक जगह टिकदी। तुसीं कहोगे वो किहड़ी हुंदी है? पुराने समय जिथे जंगल हुंदा सी, खाली मैदान हुंदा सी, रौड़ हुंदे सी, उजाड़ हुंदी सी, उत्थे एक लो जगदी हुंदी सी, दीवे वर्गी लाट। वो कदी जग के वो जगदी रहिंदी, कदी अगे भज जाती, कदी पिछे भज जाती, कदी वड्डी हो जाती, कदी छोटी हो जाती। उन्होंने भूत दीप कहते हैं।
ਭੂਤ ਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਇੱਕ, ਦੀਪਕ ਸਿਖਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਾ, ਖਾਧਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਹੀ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਗਏ ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਲਦਾ, ਦੂਜੀ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਲਾਹਾਂ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ। 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਸੰਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਡਿੱਗ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬਾਤ ਦੇ। ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲੋਭੀ ਜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਪਾਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੋਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ, ਧਰਮ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ, ਮੇਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਾਰੇ ਨੂੰ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ 3 ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ। ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡਣੀ।
हंकार छड्डना। हुण महाराज जी ने आख्या भी पंच दोख और आहंग रोग। पंच दोख किहड़े किहड़े होए? काम, इच्छा, क्रोध, जदों इच्छा पूरी नहीं हुंदी। इच्छा पूरी हो गई, वस्तु प्राप्त हो गई, लोभ। वस्तु हुण मेरे कोले जावे ना, जिहड़ी कुर्सी मैनू मिल गई मेरे तो रवे मोह, ते मैं कुर्सी वाला हंकार। यही तो है ना। इच्छा मैंने घर बन जे, नहीं बनया तो क्रोध, बन गया तो मोह, मोह तो बाद फिर मैं घर वाला हंकार। पंज चीज़ां ही शुरू तो इच्छा तो ही हुंदा सारा कुछ। तां काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। पर जिहड़ा आहंग आ उहदा मतलब आ मैं, आहंगता। एक हुंदी हंगता ते एक हुंदी ममता। ममता मैंने मेरा, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरी जायदाद। आहंगता मैंने मैं, जिहड़ी मैं निकलदी। ते हंकार मैंने जो किसी वस्तु करके। इन्ना क फर्क हुंदा हंकार दा ते आहंगता दा। तां बड़े बड़े महात्मा लोग इस पासे बड़ा ध्यान देने का यत्न करते हैं। साध संगत जी, मैं ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ गल करदा हुंदा सी भी आपां नूं नहीं पता, रब नूं ज़्यादा पता है। इत्थे महापुरख संत बाबा सुच्चा सिंह जी ना हुंदे, लुधियाना शहर सारा खुश्क होना सी। जे इत्थे खुश्क कथा करन वाले बैठे आ ते रब ने दूजा प्रेम भावना वाला भी बिठाया वा। वो हरेक दा जवाब देण वास्ते दो पक्ष लैके तुरदा जिहड़ा परमेश्वर। जे दूजा पक्ष शुरू हो रहा तो उत्थे ही वो दूसरा पक्ष भी शुरू करता है। संत महाराज संत बाबा जरनैल सिंह जी जिथे पैदा होए आ, उत्थे लागे ही एक जरनल बराड़ भी पैदा होया। जे बराड़ पैदा होया तो उधर संत भी आए। ये कुदरत का सुभाव आ। मैं हसदा पिया सी भी आपां सोचते सी भी की बनूगा, पर रब नूं पहिलां पता भी की बनाउणा। जे महापुरख संत बाबा सुच्चा सिंह जी ना हुंदे, खुश्क होना सी, खुशकी होनी सी। गुरु महाराज ते भी किंतु परंतु करया करदा सी। जिवें संत महापुरख संत इंद्रजीत सिंह जी कहते, उन्हों की गल बड़ी प्रसिद्ध आ, लिख लिख के पाउंदे, अपनी अकल ते बगाना पैसा सब नूं वड्डा लगदा है। सब कहते बहुत है। बहुत मैं हैरान होना, एक सिख ने मैनू प्रश्न किया। चलो आपस विच जो है वो तो चलदा ही रहना वा, शुरू तो आउंदा ते गांह भी इदां ही रहना वा, पर जदों गुरु ते किंतु करना, महाराज जी ते किंतु करना। बाणी दे विच एक कोई शब्द आउंदा ना, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर जाए निराशे कित, फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत, मिड़त नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। इत्ते किंतु करता किसी ने। कहंदा तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब आप भी सिख आ। कहंदा तुहाडे, जिद्दां साडा ही हुंदा वा। कहंदा तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया भी सिमल दा रुख कम नहीं आउंदा, पर अज कल सिमल दी पलाई बनदी आ। सब तो वध सियाणे अपने च जम्मे आ ना, अपने घरां च। अज कल सिमल दी पलाई बनदी आ। ते मैं बेनती की वो गुरमुख प्यारे नूं भी सिमल दी पलाई, इत्थे पलाई दी गल नहीं आ, इत्थे गल आ पत्तियां दी, छां दी, फुल्लां दी, फलां दी।
सिमल दा फुल कम ना आया तोतियां दे, फल कम ना आए, राई नूं छां कम ना आई। ते मैं आख्या मेरे भरा इत्थे कित्थे लिखिया भी लकड़ कम ना आई। इदां दे बंदे साडे घरां 'च ही आ। एक मैनू बना सवार के कहिंदा तुसीं ना पुराने विचारां दे आ। ते तुसीं थोड़ा जिहा ना साइंटिफिक चलिया करो। ठीक आ, हरेक गल दे दो कारण हुंदे, एक धर्म ते एक साइंटिफिक। एक तुहानूं मैं नवीं गल सुणाउणा, मैं नवीं पढ़ी आ, चलो तुहाडे नाल साझी करदा, तुहानूं पता हो। पहिला मुल्तान दे विच मंसूर नूं कतल कीता। जिद्दण उहदा कतल कीता, संत दा कतल कीता, ब्रह्म बेते नूं मारिया गया। उन्हें अखीरले बचन सी भी अज पागल दुनिया वालों एक सियाणा कतल किया गया, ते हे परमेश्वर इस दिन नूं कोई यादगार बना दे। उन्हां दे कहण मुताबक, मुसलमान सूफियां दे कहण मुताबक जो उन्हां लिखिया, उस घड़ी सूरज उत्थे रुक जांदा। सूरज मुल्तान दे विच रुक जांदा वा, उस घड़ी वो रुकदा वा। ਉਹਨੂੰ मंसूर दी याद ਮੰਨਦੇ। साइंटिफिक पक्ष होर होऊगा, कोई हो सकता है। उन्हां मुताबक वो मंसूर दी याद आ। साल दे विच कुछ समा होऊ इदां दा जो मैनूं पता लगा थोड़ा बहुत। हरेक गल दा साइंटिफिक पक्ष होऊगा, पर असीं धर्म दा पक्ष लैके चलदे। हुण धर्म की गल खड़ी है साधना उपर, बंदगी उपर। एक बंदा मैनू आण के कवे भी आ गल नहीं हो सकती, उन्होंने पुछो भी तू सिमरन कर लिया, तू सेवा कर ली, तू मन काबू कर लिया। मन कंट्रोल करन तो बाद जे वो चीज़ तेनू नहीं दिखती फिर तू झूठा गया। तू पहला ही कही जाना जे मन वस च नहीं आया, सिमरन तू नहीं करता, सेवा तू नहीं करता, भी तू पहला साधना कर, साडे धर्म की बाद च निर्णय दे वे की कहना है। पहला क्यों कहना पिया भी तू आ नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। एक सज्जन कहता भी साइंटिफिक पक्ष लो। मैं क्या की कहता अजकल जिहड़े डॉक्टर आ ना, वो कहते भी रोटी तो खणी अद्धा घंटा बाद पानी पीओ। कहते कि नहीं भी पाचन शक्ति अंदर दा जिहड़ा एसिड आ पानी करके मध्यम पै जांदा, रोटी पचदी नहीं। तो ठीक आ पी जाओ, जां पहला पी लो जां बाद च पी लो। एक अखाण जिहा भी इन्ना बनाया, खणी पहला पीवे तो जोगी, विच पीवे तो खणी रोगी, तो बाद च पीवे तो खणी भोगी। इदां जे बनाया है इन्होंने। तो मैं क्या फिर भी तकलीफ की आ, पी जा, मैं तेनों डकदा, मेरी गलों भावें बाल्टी पी जा जाके। नहीं कहता तकलीफ ये नहीं आ, तकलीफ मैं कहना भी महाराज च गलत लिखिया। देखो महाराज च गलत लिखिया। मैं कित्थे लिखिया? कहता रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पीओ। लोग कहता ग्रीन टी पीण लग पे, महाराज कहते ठंडा पानी पी। इदां दे भी बंदे साडे च हैगे। मैं आख्या मेरे भरा उत्थे ये गल लिखी भी रुखी सुखी खाए कै, खाण तो बाद भावें 2 मिनट 4 मिनट, वो तेरी मर्जी, ठंडा पानी पीओ। जां कै दा मतलब हुंदा जां करते कीमत करता जाने, कै जाने गुरसूरा, जां रब जानदा जां गुरु जानदा, बंदा नहीं जानदा है। बड़े बड़े सियाणे पुरुष कहंदा महाराज जी च लिखिया भी करोता बीज बीजो जमदा नहीं है, उगदा नहीं है करोता बीज। हुण तां कहंदे सियाली मक्की आ गई है। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया करोता बीज नहीं उगदा है। मैं कहा इत्थे भरा ना मक्की बीजी जान डई ना कणक बीजी जा रही, इत्थे ते नाम बीजिया जा रहा। अब कलू आयो रे,
एक नाम बोवो, अनरुत नाही नाही मत परम भूलो। हुण कलयुग के समय विच नाम रूपी बीज बीज, हवन का कोई फायदा नहीं, वर्त रखण का कोई फायदा नहीं। ये करुत्ते बीज आ, पिछले बीज आ, हुण नहीं उगने, हुण नहीं इन्हां दा फायदा होना। इन्नी क गल है। तो बड़े बड़े सज्जन कई बारी इदां दे, पर इहदा जवाब मैं कई बारी हिसाब लाया है, जिहड़ी गल एक संत कर सकदा ना, वो आम बंदा नहीं कर सकता। आम बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता है कि उन्हां दी बंदगी करके, सेवा करके सुरत एडी उच्ची हुंदी, आपां सोच भी नहीं सकते। आपां कुछ अर्थ करते हैं, वो महापुरख कुछ उन्होंने समझते। अपनी देखनी च फर्क आ, उन्हां दी देखनी च फर्क आ। तख्त श्री केसगढ़ साहब ते कथा करन दा मैनूं सुभाग दिता। उत्थे महापुरखां दा बचन चेते आया। संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं प्रश्न किया कि बाबा जी गुड़ खा लैंदे आ? कहंदे जी खा लैंदे। वो कहण तो भाव वो उत्थे लियाउणा चाहुंदा सी भी शराब पीनी की माड़ी, भी गुड़ भी तो खा ही लईदा वा। उन्हें होर बड़ियां गल्लां कीतियां, पर समा इजाजत नहीं दे रहा। संत हस के कहण लगे, कहंदे मिट्टी हैगी आ? कहंदा जी चुक लियाउणा। कहंदे जे मैं तेरे सिर च पावां कोई सट लगूगी? कहंदा बाबा जी सट तो नहीं लगनी, पर लोग कहणगे सिर च सवाह पवाई फिरदा, मिट्टी पवाई फिरदा। कहंदे उसे मिट्टी च पानी पा के, उन्नू पका के, इट बना के तेरे मैं वट के सिर च मारा फेर। कहंदे उन्हें हथ जोड़ लिया। कहंदा बाबा जे तक इदां दा साध नहीं टकरिया मैनूं, मैं तो वड्डियां वड्डियां नूं फसा छड्डिया, तूं कित्थों जवाब दे गया मैनूं? भी गुड़ वखरा वखरी चीज़ आ, पर उहदा रस कढ़ के, कस कढ़ के, विच होर कई कुछ खे सवाह पा के शराब बना के पीनी, वो वखरी चीज़ है। उस तो लहदा है, वखरी है। महापुरखां ते किड्डी महाराज दी कृपा हुंदी है। इन्ने डूंघे डूंघे प्रश्न। एक सज्जन ने, डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने लिखिया, एक संत सी, बाबा जी का बचन सुनाया ना भी इत्थे ते धन गुरु नानक दे पखे लगणगे। वो सज्जन आके महापुरख बैठे करते पे सी जाप, धन गुरु नानक देव साहब, धन गुरु नानक देव साहब। वो जान के लागे आन के कंन च कहंदा जय श्री राधे कृष्ण। संत उठ के पिछे हो गए 10 फुट। संत फिर आपदी धुन च लग के कहंदे हिरदे च उन्हां दे नाम चलदा सी, पर बाहर ये आवाज़ सुनदी हुंदी सी धन गुरु नानक देव साहब। हिरदे विच ते निर्गुण ही जाना वा ना, तां वो जाप करदे पे। वो बड़ा बंदा अड़ियल कह सकते, जां जान के शरारती बंदा सी। वो जाके कन कोले कहंदा जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण दी जय होवे। संत उठ के कहंदे होर पिछे हो गए भी तू आपदा राधे कृष्ण करी जा ते मैं आपदा धन गुरु नानक करी जाना। गुरु ग्रंथ साहिब ते सब दा साझा, मैं तेनू की कहना? होर उठ के पिछे हो गए। पर वो आया सी सिर फसाउण, वो जाप करन थोड़ी आया सी, वो ते सिर फसाउण आया सी। उन्हें फिर कंन दे विच जाके कह दिता, जदों संत उठ के पिछे होण लगे, कहंदा क्यों राधे कृष्ण तो नफरत करदा? देखो प्रश्न, ताडे गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। जिन्ने भी रब दे नाम ने मैं बलिहार जावां उन्हां तो। राधे मैंने आत्मा, कृष्ण मैंने परमात्मा, एक कृष्णं सर्वदेवा, देव देवा तो आत्मा, आत्मा बास दिवस देवस जे को जाने भेओ।
इस भेद नूं जिन्हें समझ लिया नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। नफरत करदा तूं। एक बन्ने तुसीं कहने आ अपने खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को साझा, ते राधे कृष्ण तो हुण मिर्चां लगदियां वा। अपने इत्थे आण के कोई कवे जय श्री राधे कृष्ण, तुहाडी की हालत बनूगी तुसीं दसो। तुसीं भावें कुछ ना को अगलियां वीडियो पा देनी RSS नाल रल गए, होर ते कुछ आउंदा नहीं। अजकल दे लोकां नूं फोटो खिच के पा दिंदे, वीडियो बना के पा दिंदे। किसी ने मैनू पुछया भी बाबे नानक वेले फेसबुक होंदी ते बड़ा प्रचार होना है। मैं कहदा प्रचार होना सी ओए, महाराज उत्थे हरिद्वार समझाउण गए, इन्हां कहना ही RSS नाल मीटिंग करन गया वा। कहदा प्रचार होना सी? वो वेखदे वूखदे थोड़ी आ, बस पाई आउंदे आ। मैं ना जिन्ने विद्वान उत्थे बैठे आ ना, जे किते इत्थे दुनिया च आ जाए तो थां ना लभण, पता नहीं कित्थों कित्थों कमेंट कढ़ पाई जाते। इदां जापदा भी इन्ने सियाणे पर पढ़ च कुछ भी नहीं है कोई। तो उत्थे बड़ी सोहनी विचार आई, तो वो महापुरखां हाथ जोड़ ले, कहंदे जी नहीं नफरत, राम को रहीम को अल्लाह को सानू कोई नफरत नहीं किसी दे नाल। पर मैं तुहानू बेनती करा, फिर कहंदे फिर राधे कृष्ण नाल नफरत है? कहंदे नहीं। फिर तुसीं राधे कृष्ण क्यों नहीं कहंदे? कहंदे मेरी बेनती सुन लो पहला। सतयुग तै बाणे छलियो बल बावन पायो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मरार कंस करतार्थ कियो, उगर सैन को राज अपै भगत जंदी। कहते हुण अगली पंक्ति सुन, कलयुग प्रमाण नानक गुर। कलयुग विच कौन प्रमाण आ? श्री गुरु नानक देव। अंगद अमर कहायो, वो बन गया गुरु अंगद देव साहब, वो बन गया गुरु अमरदास। श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फरमायो। रब दी गद्दी ते हुण कौन बैठा? बाबा नानक। हुण राज किहदा? बाबे नानक दा। ते मैनू ये दस भी जिहदा राज होवे ना उहदा चलदा है कि पिछले राजे दा चलदा? देखो साधां दे जवाब मनदे कि नहीं मनदे। जे माड़ा जिहा भी गलत कह जांदे ते उन्हां कहना सी उदां तुसीं कहने असीं सब दे सांझे ते नफरत करदे हां। देखो संत किड्डे उच्चे हुंदे। ਉਹਦੀ तसल्ली भी कराई भी तू इदां दी गल ना समझ भी नफरत करदे किसी दे, इहो जी कोई गल नहीं। जिहदा राज होवे ना उहदा चलदा है, मोहर उहदी चलदी आ, दस्खत उहदे चलदे आ, सिक्का उहदा चलदा है। रब दी गद्दी दा वारस इस टाइम बाबा नानक है, ते इस टाइम मैनू भी जपना पैना ते तैनू भी जपना पैना। धन गुरु नानक देव साहब, धन गुरु नानक देव साहब। ਜਿਹੜਾ जवाब एक महात्मा दे सकदा ना, जवाब असीं भी दिंदे आ पर अगले दा मन साड़ दईदा फड़ के। जवाब एक संत भी दिंदा है, उत्तर भी मिल जाता तो उहदे मन नूं शांति भी आ जाती, तसल्ली भी आ जाती। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। महापुरखां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सारे ही गुरमुख विद्यार्थियों का, प्रबंधकों का, उस्ताद साहिबान का, संगतां का बहुत बहुत धन्नवाद जी। लेखा कते न छूटिए, खिन खिन पूजन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार।